Hey, you awesome listeners. Welcome back again to yet another episode of the Career Talk Show podcast. So आज के जो इस एपिसोड में मेरे साथ गेस्ट हैं, शी इज अ माइंडसेट कोच, शी इज एन ऑथर, शी इज एन एंटरप्रेन्योर एंड शी इज ऑन अ मिशन राइट नाउ टू empower people to take charge of their lives, create an authentic self from meaningful relationships. So please help me invite Mitali Chhabra. So Mitali, welcome on the show and thank you so much for being here. Hi Rohit, thank you for having me here. So glad. Thank you so much, Mitali, for being here. So, Mitali, first of all, I would like to start with who is Mitali Chhabra and what do you do exactly? I am basically a mindset coach right now. Mindset coach are previously or also known as life coaches. Matlab basically how you deal with problems in life whenever you are stuck in career relationship. So we come out to help and rescue you from where you are stuck. So basically what I do is I handhold people for where they're stuck, whether it be it career relationship or their personal life, personal growth, wealth related issues. So I come and handhold them through a journey of 10 weeks with the program that I offer and take them out and create a mindset for them which will help empower them and take them forward. Okay. That is what I do as a coach. Also, I'm a daughter and I live with my parents. I have an elder sibling. And I also work professionally. I have my own job as well. I work 9 to 5 with a company. And I would not disclose the name of the company, but yeah, I also work with the company as a subject matter expert in chemistry. Great. So, Mitali, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, you mentioned you are a mindset coach. Oh. What is a growth mindset? और ये important क्यों है basically? Because most of, like we all know that mindset होना चाहिए. But what is a growth mind? What is the right mindset to have for someone जो कि चाहे वो career में है, चाहे वो personal, professional, किसी भी area of life में, why is that mindset important और वो कैसे build कर सकते हैं basically? फर्स्टली मैं जिस चीज के बारे में बात करूंगी वो बात करूंगी माइंडसेट के बारे में. माइंडसेट क्या है? आप कंडीशन हुए हो, आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, यू हैव बीन लिव्ड अप विद योर फैमिली, your friends, experiences, तो वो चीजें आपको कंडीशन करती हैं and they automatically set an experience, a set of things that you discover, they are embedded in you, आपके अंदर वो बैठ जाती है unconsciously. तो आप उन्हीं अनकॉन्शियस चीजों की वजह से अपनी लाइफ में सर्टेन डिसीजंस लेते रहते हो एट एवरी मोमेंट, करियर, रिलेशनशिप्स या आपके वेल्थ रिलेटेड, पोजेशंस रिलेटेड, आपके फ्रेंड्स रिलेटेड, आपके जो भी डिसीजन है, आप उन सबकॉन्शियस थॉट्स पे वो जो डिसीजन लेते हो वो आपका माइंडसेट है. आप सोचते नहीं है उसमें. ठीक है. और व्हाट इज ग्रोथ माइंडसेट इज जब आप अपने माइंडसेट को एक ऐसी स्टेट में ले आते हो जहां पे आप कुछ चीजें अपनी लाइफ की चेंज करना चाहते हो एंड देन यू हैव टू कॉन्स्टेंटली अडेप्ट. हर मोमेंट आपको अडेप्ट करना पड़ता है, हर वक्त के साथ, हर सिचुएशन के साथ. आप डिसीजन कैसे लेते हो? अगर सपोज आप एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हो जहां पे आपको फियर फील हो रहा है, तो अगर आपके पास, आई वुडंट से ग्रोथ माइंडसेट है या नहीं, बट आपके पास एक राइट सेट ऑफ स्टोरीज है दिमाग में कि हाँ मैंने ये पहले भी किया है, मैं ये भी कर सकता हूँ, तो वो आप उस फियरफुल सिचुएशन से बाहर आ जाओगे. बट आपके पास अगर कोई एविडेंस नहीं है, आपके पास आपने कभी कोई फियर को रिलेटेड कभी डिसीजन लिया ही नहीं, तो आप पीछे रह जाओगे बिकॉज आप नॉर्मल माइंडसेट से चल रहे हो. बट फॉर अ पर्सन हु इज एम्बेडेड विद ग्रोथ माइंडसेट, वो उस फियर वाली सिचुएशन से जंप करके he'll come out. So ये डिफरेंस है बेसिकली माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में. Okay. Mitali, can you give some examples of both the scenarios कि एक सिनेरियो में आप नॉर्मल माइंडसेट क्या करेगा और ग्रोथ माइंडसेट क्या करेगा? Can you give an example of that? Yes, for sure. एक नॉर्मल एग्जांपल में सपोज देयर वाज, मैं अपनी ही बात करती हूँ. सबसे पहले मैं अपनी बात करती हूँ कि देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज जॉबलेस, financially broke, had no money. This was back in 2020, July August वाला सिनेरियो था ये. My business has gone down the drain COVID की वजह से, तो I was at the scratch, no money. और वहाँ पे एक fearful anxiety situations थी कि क्या मैं जॉब में जा सकती हूँ, डू आई स्टिल हैव दैट कैलिबर, इम्पोस्टर सिंड्रोम जिसे बोलते हैं, क्या मैं अभी भी कैलिबर में हूँ कि मैं अपनी केमिस्ट्री रिलेटेड जॉब रिज्यूम कर सकती हूँ कहीं पे.
और एक ये चीज थी कि फाइनेंशियली ब्रोक हूँ, आगे अपना बिजनेस तो कंटिन्यू कर नहीं सकती. सो दैट वाज अ पॉइंट ऑफ डिसीजन. इफ आई डोंट डू समथिंग, मैं पीछे आ जाऊंगी, बैक टू डूइंग नथिंग. मतलब बैठो घर पे, पेरेंट्स की बात सुनो और उन्हीं के ही हिसाब से चलो. और आई टेक अ डिसीजन ऑफ फियर. जो मेरे अंदर फियर डेवलप हुआ हुआ था कि क्या मैं केमिस्ट्री दोबारा से रिवाइव कर पाऊंगी, पढ़ाई कर पाऊंगी, बिकॉज आई विल बी इन दैट पर्टिकुलर जॉब. तो आई टुक अ प्लंज. ली हिम्मत की, किताबें उठाई, पढ़ाई की, इंटरव्यू के लिए तैयारी की जिस जॉब के लिए, एंड देन आई फाइनली क्रैक्ड इट. ओके. बट वो मोमेंट ऑफ जो ट्रूथ था, जो मोमेंट ऑफ फेस था, अगर मैं पीछे हट जाती, आई वुड हैव बीन देयर. आज मैं शायद वहीं की वहीं होती, ज्यादा से ज्यादा कुछ और कर रही होती, किसी और चीज में हाथ डाला होता. बट उस प्लंज को लेने की वजह से, एक तो मेरा प्रोफेशनली आई गॉट इनटू अ जॉब. सेकेंडली, आई ऑल्सो got into coaching as well. And that time, actually, I enrolled into coaching first and then into job. That's a story that we both know. ओके. कि पहले मैंने कोचिंग में enroll किया था and then I enrolled for the करेक्ट. job. ओके. सो मिताली, आपने अभी इम्पोस्टर सिंड्रोम की बात करी. फॉर दोज हु डोंट नो कि इम्पोस्टर सिंड्रोम होता क्या है, कैन यू डिफाइन दैट? बिकॉज आपको पता है, मुझे पता है, बट देयर विल बी सो मेनी पीपल जिनको पता ही नहीं होगा कि वो किस बारे में बात कर रही है मिताली. सो कैन यू डिफाइन देम दिस फॉर देम? या इम्पोस्टर सिंड्रोम वो होता है कि जब आप ये समझते हैं कि मुझे उतना नहीं आता. आपको लगता है कि बाकी सब अच्छा कर रहे हैं, बट आपको नहीं आता. यू आर नॉट केपेबल इनफ. यू ऑलवेज डाउट योर केपेबिलिटीज एंड you think you're not good enough. That is basically imposter syndrome. Suppose if I talk to you about this profession only, coaching में, अगर मैं कहूँ कि why do I charge this much to my clients, मतलब मैं इतना प्राइस कैसे बोल दूं? I think I'm not good enough. वो नहीं देंगे इतना पैसा. I'm not good enough. So that feeling of कि you're not calibered enough or you're not good enough, you're not skilled enough, वो that is called imposter syndrome. Okay, got it. So basically, to all the listeners who are listening to this, अगर आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आप इंटरव्यू में जाने से पहले ही सोच रहे हैं कि यार मैं इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाऊंगा, मेरे अंदर वो कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, मेरे अंदर वो टेक्निकल स्किल्स नहीं है, तो आप पहले ही वो इंटरव्यू हार चुके हैं, राइट? सो यू आर इन दैट स्टेट ऑफ इम्पोस्टर सिंड्रोम राइट नाउ, राइट मिताली? Right, right. बट हाउ वी कैन ओवरकम दैट? अगर मैं किसी इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, तो हाउ शुड आई गेट आउट ऑफ दैट जोन जहाँ पे मैं सिर्फ सिर्फ सेल्फ डाउट कर रहा हूँ, जहाँ पे सिर्फ I think for me, mirror standing in front of the mirror gives me a lot of confidence. This is something that has worked for me and for the clients that I work with also. So it's like you also say that कि अपने आप में confidence कैसे लाएं, how do we face others और ये सब चीजें. So it's better to first face yourself. So when you are in the mirror, look at yourself, look at your body posture, look at how you're standing, how you're looking. अगर आप खुद से impressed हो, you will impress the other person. अगर आप खुद से impress नहीं हो, then it's time that you work on yourself. अगर आपको पता है आपके communication skills अच्छे नहीं हैं, if that is actually the truth, then work on it. करेक्ट. if अगर आपको सिर्फ एक imposter syndrome है कि नहीं है अच्छे, although हो सकता है आपके अच्छे होंगे, but आपको एक feeling आ रही है ऐसी, then right before the interview, one should stand in front of the mirror and talk to them like they are the king of this world. Feel, I can do this. I'm on it. I will kill it. These should be the words that can empower you at that moment. This will change the game. Right. And मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है इसमें, मैं ये ऐड ऑन करूंगा इसमें कि आपको इम्पोस्टर सिंड्रोम जब भी आप उस स्टेट में जाते हैं जब आप अपने आप को कंपेयर करते हैं किसी दूसरे के साथ. यार मेरे फ्रेंड की या फिर जो यहाँ पे कैंडिडेट्स आए हुए हैं इस इंटरव्यू के लिए, इनकी कम्युनिकेशन अच्छी है, बट वो आप जज किस बेस पे कर रहे हैं? मे बी उनके पर्सनैलिटी के ऊपर, मे बी उनका जो अटायर है, मे बी उनका जो ड्रेसअप है, उन चीजों के ऊपर आप जज करते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल वो जज ही करते हैं इस चीज को. और वहां पे कंपैरिजन आ गया एक तो, अकॉर्डिंग टू मी. और सेकंड है कि आप अपने आप को कितना एवेल्युएट करते हैं. कि जैसा आपने कहा भी कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, बट स्टिल यू आर जस्ट थिंकिंग कि यार मेरी इतनी अच्छी नहीं है.
वो कितनी अच्छी, वो आपने ही सेट बार सेट किया हुआ है कि इतना अच्छा होना चाहिए बेसिकली। राइट। सो यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट जोन, और उसके लिए सबसे बेहतर, जैसा मिताली ने बताया, कि यू नीड टू प्रैक्टिस सेल्फ लव, और कंपेयर करना बंद कर दीजिए अपने आप को। और ये राइट। पता है, ये कहना बहुत आसान है कि लाइक कंपेयर करना बंद कर दीजिए, बट एक्चुअली वी आर लिविंग इन दिस एरा वेर हर मोमेंट पे हम ऐसे लोगों से, ऐसे प्रोफाइल्स से सराउंडेड हैं कि वी बाउंड टू गेट कंपेयर। हम खुद ही को कंपेयर कर लेते हैं, वी ऑफन एंड अप एग्री, डूइंग दैट, बट एग्री। हमें पता होता है कि हम यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं, हमें इससे बाहर आना है। वी ऑफन एंड अप एट प्लेसेस, बट क्या कर सकते हैं इसके लिए आपको खुद को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद को ऐसे कंपेयर कर रहे हैं, आपके पास कोई पार्टनर नहीं है, बट आप किसी और के रिलेशनशिप को देख के उससे कंपैरिजन कर रहे हैं, देयर इज नो पॉइंट। पहले आपके पास खुद कुछ होना चाहिए, आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि मैं किस चीज के काबिल हूँ, केपेबल हूँ, मुझ में क्या क्या क्वालिटीज हैं। सो दैट इज द बेसिक थिंग कि कंपैरिजन आप बेसिकली वही कर रहे हो कि आप एक फिश का कंपैरिजन पेड़ पे चढ़ने की कला से कर रहे हो, विच इज नॉट पॉसिबल। हर बंदा अलग है, उसकी कैपेबिलिटीज अलग है। यही हम एक्चुअली प्रोग्राम में भी करते हैं अपने। आप अलग हो, मैं अलग हूँ, आपकी जो वैल्यूज हैं वो मेरे से बिल्कुल मैच नहीं खाती, तो मैं रोहित से किस बात का कंपटीशन करूँ, किस बात का कंपैरिजन करूँ? कोई है ही नहीं। वो ह्यूमन ही अलग है। रोहित की वैल्यूज, रोहित का सिस्टम, रोहित का माइंडसेट, रोहित के दिमाग में जो बातें हैं वो बिल्कुल मेरे दिमाग से अलग है, तो उसके ऑब्वियसली एक्शंस अलग होंगे, एक्शंस अलग होंगे तो आउटपुट्स अलग होंगे, बिल्कुल, मेरे एक्शंस अलग होंगे तो मेरे आउटपुट्स अलग होंगे। तो मैं कैसे कंपेयर कर दूं? ना तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट सेम, ना मेरा स्टार्टिंग पॉइंट सेम, ना तुम्हारी फैमिली, ना मेरी फैमिली की अपब्रिंगिंग सेम, ना तुम्हारी और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन सेम। मैं कैसे कंपैरिजन कर दूं? कंपैरिजन उन चीजों का होता है जो सिमिलर लाइंस पे होती हैं। हम्म, जब हम सिमिलर लाइंस पे ही नहीं है तो कंपैरिजन कैसा? ट्रू। एंड मिताली, इसमें एक रोल आज के टाइम में, जिस एरा में हम रह रहे हैं, जैसा आपने बताया, सोशल मीडिया हैज अ लॉट टू कंट्रीब्यूट टू दिस। और आई थिंक इट हैज 90% कंट्रीब्यूशन इन गेटिंग कंपेयर्ड। अंकुर वारिको का उस दिन न्यूज लेटर था, बहुत ही ब्रिलियंट न्यूज लेटर था कि the time in which he was living, that is basically our parents generation, हम्म, they had no option but to wait for things. करेक्ट। फोन पे बात करने के लिए they had to dial a number, wait for 2 hours, कॉल कनेक्ट होता था, they had to go to the milk booth, वो दूध की बाल्टी भरी जाती थी मिल्क डेयरी से, for everything they had to eventually wait. हम्म, अब हमारी जैसी जनरेशन को everything is there at their disposable, click, it's just a click away. करेक्ट। Amazon, you buy, click, buy, add to cart, you buy, right? And Myntra, you want to buy a t-shirt, it's a click away. For a partner, swipe right, हम्म, available. So everything is available at a click. So this is करेक्ट। what is from Ankur Warikoo's newsletter. So, and ऐसी चीजों में when everything is available to you at this speed, तो आपका वेट ही नहीं होता, आपके पास पेशेंस ही नहीं है। आपके पास अगर कुछ अच्छा नहीं है इस वक्त, तो आपके पास पेशेंस होगा भी नहीं कि आप दूसरे अच्छी चीज का इंतजार करो। आप फटाफट पहली चीज को डिस्कार्ड करते हो, दूसरी चीज के ऊपर भागते हो। दैट इज विद एवरीथिंग, इवन विद पर्सन्स दैट वी आर डूइंग। करेक्ट, करेक्ट। और आज के टाइम में मुझे लगता है जो यंगस्टर्स हैं बेसिकली, चाहे वो करियर में है, चाहे रिलेशनशिप में है, वो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, वो इंफॉर्मेशन का ज्यादा एक्सेस होना है, इजीली यस, अवेलेबल होना। एक्चुअली उसको पहले कहते हैं था कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड। yeah, right, it was like कि little knowledge is a dangerous thing. It's like हाँ। today is like overload of knowledge is a dangerous thing because we are surrounded with so many things, so many. इसमें इसी because of all of this information we lose ourselves, हम्म, we lose the original identity of ourselves. हमें नहीं पता होता। If you ask me 3 years back who was Mitali, I really wouldn't have known myself. मुझे नहीं पता था मैं कौन हूँ। तो right now I know who I am, which kind of people do I want myself to be surrounded with, मुझे किस तरह के लोग अपने आसपास चाहिए, मुझे किस तरह का काम करना है, मुझे कहाँ अपना टाइम 1 घंटा देना है, कहाँ मुझे 5 मिनट से कम देने हैं। आई नो ऑल ऑफ दिस इज बिकॉज मैंने फोकस सारी चीजों पे छोड़ के इनवर्ड किया। और हमारा फोकस अभी कहाँ है? बाहर। एवरीथिंग इज आउट ऑन सोशल मीडिया। हमारे पड़ोसी, हमारे बगल वाले क्या कर रहे हैं, हमारे कोलीग्स क्या कर रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं,
our focus is surrounded everywhere, and hence we end up comparing ourselves because सब कुछ social media पे है. Got it. So I hope this would help. Now, मिताली, आपने कहा कि 3 साल पहले अगर आप मुझे देखते तो I would not be doing all these things. So how did you identify कि मेरे माइंड के अंदर these are the roadblocks जो कि मुझे स्टॉप कर रहे हैं? First question, how did you identify them? Second, how did you overcome them? Identify तो I think so कि life has been kind enough कि कोचिंग जैसी चीज मेरे आंखों के आगे खुद से आ गई थी. बट इफ आई गो 3 years बैक, जब मैं आईआईटी से बाहर आई थी, इट वाज 2018, या जुलाई 2018, एंड उस टाइम जब एक रोड ब्लॉक था कि अब क्या करना है, कर ली, चलो एमएससी कर ली, बीएससी करनी थी वो कर ली, एमएससी कर ली, अब आगे ऑब्वियसली फॉर पेरेंट्स जॉब ज्वाइन करी, आई बिकेम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, 1 साल वहां काम किया, ठीक चला, एवरीथिंग वाज नॉर्मल, एवरेज, बट वेरी एवरेज. मतलब कुछ ऐसा खास नहीं था कि हाँ मैं कहूँ कि हाँ मेरी लाइफ बहुत हैपनिंग थी और कुछ, आई जाना सुबह वापस आना, दैट इज द बेसिक थिंग दैट वाज हैपनिंग. Then when I left job and then I switched to business, entrepreneurial journey बहुत exciting लगी थी. Start किया, initial phase enjoy किया, but then COVID happened. वो जो downfall था मुझे उसको treat करना नहीं आया. उस downfall में मुझे फिर से road block महसूस हुआ कि अगर chemistry नहीं, अगर ये भी नहीं हो रहा, then क्या, अब क्या. तो आइडेंटिफिकेशन एक्चुअली यहीं से हुआ जहां में मेरे डाउनफॉल्स थे, डाउन पिचेस थे. वो जो एक डाउनफॉल आया आफ्टर जॉब, अब क्या. देन आई थॉट फॉर बिजनेस भी नहीं हुआ, डाउनफॉल आया, अब क्या. सो एक गैरी भी की एक लाइन है कि लाइक द क्विकर यू फेल द क्विकर यू लर्न. So I failed multiple times quickly, and then it also gave me a chance to come back quickly and do something else, do something new, जो शायद फिर से मुझे बता दे कि हाँ you are either suitable for this or not. So बीएससी से लेकर एमएससी से लेकर मेरे बिजनेस करने तक मुझे ये चीजें पता लग गई थी मुझे क्या क्या नहीं करना. Okay. एमएससी में पीएचडी नहीं करनी, ठीक है, ये पता लग गया था. टीचिंग करने के बाद ये समझ आ गया दोबारा टीचिंग नहीं करनी. उसके बाद बिजनेस करने के बाद ये समझ आ गया था कि ये शायद मेरे बस का नहीं है, दिस इज नॉट व्हाट आई एम लाइकिंग इट, बट मुझे पैसे कमाने के लिए कुछ करना है, तो फिलहाल जॉब ले लेते हैं, फिर डिस्कवर करेंगे साथ साथ कि खुद के लिए क्या करना है. दैट वाज व्हेन कोचिंग फाउंड मी. बिटवीन दैट डिसीजन ऑफ जॉइनिंग अ जॉब एंड द ब्रेकडाउन, द डाउनफॉल, उस दौरान उसके जो बीच का गैप था, वहां मुझे कोचिंग मिली थी. वहां मुझे ऐसे लोग मिले थे जिन्होंने मुझे एहसास कराया कि ये एक ऐसी कम्युनिटी है, ऐसा रीजन है जहाँ पे मैं अपना बेस्ट फील करती हूँ. वैसी फीलिंग मुझे कभी नहीं हुई थी पास्ट में. तो मुझे आइडेंटिफाई हुआ कि दिस इज द राइट प्लेस. एवरीथिंग गॉट अलाइंड. मेरे जॉब के प्रोस्पेक्ट साथ आ गए, कोचिंग अच्छी चल रही थी, देन आई गॉट सर्टिफाइड, देन आई गॉट क्लाइंट्स. तो देन एवरीथिंग गॉट अलाइंड. देन आई रियलाइज कि इट वाज वेरी स्मॉल, बट वो धीरे धीरे कन्वर्ट होके एक आहा वाली चीज हो गई थी. लाइक एवरी डॉट वाज गेटिंग कनेक्टेड. जब हम अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, इट वाज लाइक एवरी डॉट वाज गेटिंग कनेक्टेड. मैं इसलिए मल्टीपल बार फेल हुई ताकि मैं यहाँ पहुंच सकूं. बिकॉज अगर मैं मल्टीपल बार फेल नहीं होती, मल्टीपल चीजें ट्राई नहीं करती, तो मैं शायद यहाँ ना होती जहाँ मैं आज हूँ. Correct. Even my friends, one of my friends from school, she said कि now you are at the right place. Now I feel you are at the right place. तूने बहुत चीजें try की. You have tried YouTube for makeup. You have tried being an assistant professor. You have tried your business. You're doing a job. But I feel right now what you're doing as coach is you were meant for this. Then also I thought, she's right. Actually, I feel things aligned. मिताली, आपने अभी कहा coaching find me. Instead of saying I find coaching, you said coaching find me. Can you share something on that?
डेफिनेटली इसके ना मुझे एसआरके का डायलॉग अच्छा सा याद है कि अगर तुम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है. हम्म. तो the downfall that was I was having was filled with anxiety. हम्म. काफी ज्यादा thoughts, overthinking ये सब चीजें चल रही थी. एंड मुझे था कि मुझे ये स्टक जो फील हो रहा है ना कि आई कांट मूव, ना मैं आगे जा सकती हूँ ना मैं पीछे जा सकती हूँ, आई एम नॉट एबल टू टेक अ डिसीजन, मुझे इससे बाहर आना है. हाउ डू आई डू इट, हाउ देन लिसनिंग टू मल्टीपल पॉडकास्ट बाय जय शेट्टी, रणवीर, आई थिंक दीज वर माय स्ट्रेंथ्स ड्यूरिंग दैट टाइम. हम्म. इन्होंने मुझे पकड़ के रखा, दीज पॉडकास्ट, ये लोग, इनकी बातें. एंड one fine day I was scrolling through Facebook when I landed on Arfin Khan's ad, and I went ahead to give a test, which was a personality test, and which said I was a helper. And I was like, how does this report knows me better than I know myself? मतलब ये मुझे मुझसे बेहतर कैसे जानती है? I think that was a moment when things started changing कि मैंने एक फ्री प्रोग्राम में एनरोल किया, देन एक पेड प्रोग्राम में एनरोल किया, which is a long story. But that is when I say कि आज मेरे को रियलाइज होता है कोचिंग फाउंड मी. आई डिडंट फाइंड कोचिंग. मैंने स्पेशली जाके, मुझे पता नहीं था कि कोचिंग जैसे प्रोफेशन एग्जिस्ट करता है कहीं पे, तो इसीलिए कोचिंग फाउंड मी. आई डिडंट फाइंड इट, मुझे नहीं Got it. पता था. It landed up in front of me. I didn't go and search for it like we do for a job. We go and search out for a job. I didn't do it. It came in front of me. Got it. Got it. Interesting. Okay. So, Mitali, going back to your childhood, I know we have talked about it, but I want listeners to know this. There was a time when you were completely feeling lonely. You are just going through that phase. Could you please share more about that phase of you being lonely in your school, in your college, and then coming out of that zone and being where you are? Yeah, that was in college. Because I was in college most days. of the people वो कहते हैं ना कि यार मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मेरे को लोगों से बात करना पसंद नहीं. वाज दैट कि यू आर लोनली बाय चॉइस, कि मुझे पसंद ही नहीं है तो मैं उस जोन में हूँ, या फिर व्हाट वाज गोइंग थ्रू दैट टाइम? इंट्रोवर्ट कोई भी नहीं होता. हम्म. Nobody is an introvert. सब अपने तरह के टाइप के लोगों के सामने एक्सट्रोवर्ट होते हैं. You करेक्ट. just need the right set of people. हम्म. If I put you with people who are coaches, who are talking about career, ना, you will be the best person out there. तुम्हें बहुत मजा आएगा. हम्म. And if I put myself around people who are talking about other people, I will be an introvert there. तो मैं usually an extrovert हूँ. Usually I say myself as an extrovert. तो अगर आप किसी को मिसमैच करके बिठा दोगे तो obviously the person becomes introvert. तो हाँ, the story goes back to in BSc first year basically, जहाँ पे one fine day I found myself crying in chemistry lab. जब लैब ओवर हो चुकी थी, सारी फाइल सबमिट हो चुकी थी, एवरीवन वाज वाइंडिंग अप देयर वर्क एंड बैग पैक करके घर जाने की तैयारी, एंड मैं कोने में खड़ा हूँ, मेरा क्या होगा, मैं कहाँ फंस गई हूँ. लिटरली मेरी ये सिचुएशन थी कि मिरांडा वाज मिरांडा, आई एम फ्रॉम मिरांडा हाउस, दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैंने अपना बीएससी ऑनर्स वहां से किया है. तो वहां मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि मुझे अकेला क्यों लगा, क्योंकि मेरे जैसे लोग नहीं थे वहां पे. राइट. Everyone was from different cultural backgrounds. हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट, साउथ, नॉर्थ इंडिया, मतलब सब जगह से लोग थे. एंड आई फाउंड माई सेल्फ लॉस्ट. मुझे लगा कि मैं तो बहुत अकेली हूँ, मेरे जैसा कोई है ही नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं है. करेक्ट. एंड आई थिंक 2 to 3 months passed like that until unless एक दिन जब मैं एग्जाम फॉर्म फिल कर रही थी and I needed help, so I went ahead to my classmate and I asked her कि कैसे करना है. She helped me out and said I asked her thank you and all of that. हमारी थोड़ी सी बातचीत हुई and today she's my best friend काजोल. तो yeah, वो पहली मीटिंग थी एक कि जब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ लोग हैं, it's just that you have to find your tribe. लोग एग्जिस्ट करते हैं हर जगह आपके जैसे, बट इट्स जस्ट दैट यू हैव टू फाइंड योर ट्राइब. कई लोगों को बाय चांस मिल जाती है ट्राइब, कई बार आपको ढूंढनी पड़ती है. और मेरे को ऐसा लगता है इट्स मोस्टली बाय चांस ही होता है, बिकॉज आपकी वाइब्स, आपकी जो वैल्यूज हैं ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करती हैं द राइट पर्सन. बट फॉर दैट रिगार्ड्स यू नीड टू नो योरसेल्फ अ लॉट. Obviously, yes.
Mitali, what was your biggest failure, I'll say, and biggest achievement? Mm, if I include your education, like I mean your grad, post grad, your business experience, your teaching experience, your coaching experience. Like, if I sum up all the things, which event you are able to recognize in your mind, you're able to thought of, जब आप सुनते हैं कि biggest failure और biggest achievement. मेरा biggest failure was to let myself down when I did business. Okay, and it didn't work out. I think वो मेरा सबसे बड़ा failure mentally था, financially था, emotionally था. Like it was the biggest setback that I had, and not most people know about this. गिने चुने लोगों को ही पता है ये चीज. That was my biggest failure. And biggest achievement, I think मैं किसी एक चीज को बहुत बड़ा सा I think शायद डिफाइन ना कर पाऊँ, क्योंकि हर प्रोफेशन में मुझे मेरा इंटेंशन का रिवॉर्ड मिला है. बी इट टीचिंग, मुझे ऐसे बच्चे स्टूडेंट्स जो मेरे से 2 या 3 साल ही छोटे थे, बिकॉज हमारी एज में ज्यादा फर्क था नहीं, तो मुझे ऐसे स्टूडेंट्स मिले, ऐसे आई वुड से फेलो लोग मिले जो बहुत ही अच्छे थे. लाइक वो आज भी मेरे से टच में. सो मेनी स्टूडेंट्स आर इन टच विद मी टिल टुडे. जब मैंने बिजनेस किया, जो बिजनेस में मेरे कस्टमर्स बने थे, they who liked my oil, who liked my service, who used to wait for the handwritten notes that I used to put in the packages. So I made connections with the right intentions. And then when I went into coaching, I think my intentions, which were right for the good, for the people that I wanted to do, be it through my service as a teacher, be it through my product as a hair oil, which wanted to help people with regrowth of their hair, be it as a service again of helping people coming out when they are stuck. So my intentions are my biggest like achievement, I think, क्योंकि वो मुझे ऐसे connections, ऐसे लोगों से मिलाती रही, that my life eventually got better. कोई एक अचीवमेंट नहीं कह सकती मैं. मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट बहुत है. मटेरियलिस्टिक बहुत है. वी मूव्ड इनटू आवर ओन हाउस. आई मेड a 6-figure income in last 1 year. Last 1 year में एक month में I got a 6-figure income. I bought so many things for my family, but materialistic चीजें at the end they move lower. I think मेरे लिए उनकी रेटिंग काफी नीचे आ जाती है, because मेरा इंटेंशन और मेरा पर्पस इससे बड़ा है. ये बाय प्रोडक्ट है उसका. Got it. मिताली टॉक्ड अबाउट कि आपका जो सबसे बड़ा फेलियर था वो आपका बिजनेस था, जिसमें आप फेल हुए, जिसमें यू आर इन्वॉल्व फाइनेंशियली, मेंटली, like overall. What would be the biggest learning for you from that experience? My first and foremost learning is never trust people for their words. Always trust them for their actions. कोई कुछ भी कहता रहे कि ऐसा ऐसा मैं कर दूंगी, ऐसा मैं कर दूंगा, बट ऐसा ऑब्वियसली एट द लॉन्गर स्पैन आपको नहीं चीजें दिख रही होती हुई, तो ऑब्वियसली नेवर ट्रस्ट people for their words, always trust them for their actions. Secondly, before trusting people, trust yourself. I think this should be number 1, and number 2 should be the other one that I said, never trust people for their actions, and number 3 should be remember the first point. Okay. Trust yourself. At the end, trust yourself and trust your work. Great. खुद को बहुत underestimate किया मैंने during the time of business. For everyone who bought my hair oil, if till date they ask me कि एक oil का bottle चाहिए or we want to get that, मुझसे लोगों ने 10-10, 12-12 bottles ली हैं. मतलब there has been immense love for the product that I created. Everyone said that this has so much potential. This could have done so much better. But मैं नहीं कर पाई. I blame a lot on myself. इसलिए पहले पहली चीज खुद को दी. I changed that कि पहले मुझे खुद पे ट्रस्ट करना चाहिए. मैं किसी और को ब्लेम क्यों दूं? First blame is on me that I didn't trust in myself. तो वो चीज है.
So I think it was more of a kind of a taking responsibility than blaming yourself, because when you take responsibility, जब भी आप जो आपने 3 पॉइंट बोले, trust yourself, never trust someone for their words, trust them for their actions. Third one, repeat, Remember first point. remember Yeah. first. So I think जो आपने first point बोला, trust yourself first, वो right now you're able to say that right now is because you've taken the responsibility for that thing, Right. right? So blaming might not work in that situation, so you need to take Blaming ownership. never works. Blaming never works. Yeah. So taking the ownership कि भाई हाँ जो हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, मैंने ही कुछ डिसीजंस लिए थे पास्ट के अंदर which is helping. That actually, Yeah. मैंने ही कुछ ऐसे decisions लिए which didn't turn out fruitful. It was taking blame on myself, taking ownership, and that is actually liberating. Then आप किसी को blame करने से, किसी को अपना anger दिखाने से, exhaust होने से बच जाते हो, because then आप अपने पे बहुत ज्यादा देर गुस्सा नहीं रह सकते. Especially जब बंदा खुद से बहुत प्यार करता है, क्योंकि मैं ऐसी हूँ जब मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ तो मैं खुद से ज्यादा देर गुस्सा रह नहीं सकती. And I had to forgive myself and then work on this thing. कि भाई next time you won't do that, right? वो चीज़ है. Correct. Okay, we got your learnings from your business. What would be the learning from your college life and your school life? And right now also, आप अभी corporate में काम कर रहे हैं, तो corporate life as well. So far जो भी आपका experience. From my school life, I was a fat kid. Yeah, I was a healthy, chubby kid, and I was made fun of. मतलब अच्छे खासा मेरा मजाक, और I had मोटा चश्मा. You know मेरी सर्जरी हो गई है, but अभी पहले मेरा चश्मा था. तो मेरा बहुत मजाक बनाया क्या था, and that obviously मेरा confidence थोड़ा कम था because I had acne, और जो भी चीजें एक यूजुअल स्कूल गर्ल और स्कूल बॉय को होती है, that I faced. हाँ, उस चीज से कॉन्फिडेंस कम ऐसे हुआ था कि अपनी बॉडी से हेट्रेड ज्यादा था, लव कम था. बट देन अगेन वहां पे शायद इतनी समझ थी मुझे कि मुझे इस चीज का ओनरशिप खुद ही लेना पड़ेगा, तो मुझे ही काम करना पड़ेगा. सो दैट इज देन इन आफ्टर 12th मैंने जिम वगैरह ज्वाइन किया, एंड आई टुक केयर ऑफ माई सेल्फ एंड lost some weight, and I was looking decent and fine by the time I joined BSc. So my biggest learning in school would be ki obviously not hating myself, not hating my body, and I didn't realize कि जो भी हो रहा था that was biological hormonal changes that were happening, और मुझे अपने आप से ज्यादा प्यार करना चाहिए था. It needed, my body needed myself more at that time, and I used to cry. Okay, मैं अपने pimples के लिए medication लेती थी, and my pimples weren't going off, and मैं एक बार डॉक्टर के आगे जाके रोई कि कैसी दवाई है, काम तो कर नहीं रही है. एंड बिकॉज मेरा कॉन्फिडेंस शैटर हो गया, तो मुझे लगता था अच्छा ये नहीं होगा ना, तो आई बी फीलिंग गुड एंड नाइस, एंड बट एक्चुअली दैट वाज नॉट केस. नहीं, वो अंदर से ही कॉन्फिडेंस हिला हुआ था. तो फर्स्ट फॉरमोस्ट लर्निंग वाज कि टू एक्सेप्ट माई सेल्फ. वहां से एक्सेप्टेंस होगा, अगर बॉडी, फिजिकल बॉडी को लेके एक्सेप्टेंस होगा, तो आप इंटरनल बॉडी का एक्सेप्टेंस ले पाओगे, अपने एक्शंस का, अपने डिसीजंस का. The first learning from my school was to accept my body, to accept myself physically, how I looked, वो सब चीज. Got it. And in college मेरी learning थी कि I should have had more fun. BSc में मैंने एक्चुअली उल्टा किया, मैंने MSc में ज्यादा मजे किए, BSc में ज्यादा सीरियस लगी. तो मुझे BSc में मजे करने चाहिए थे, MSc में पढ़ाई करनी चाहिए थी. मैंने MSc में पढ़ाई नहीं की, मैंने MSc में ज्यादा मजे करे. So is it a थोड़ा suggestion? it's Is a it a kind of a, suggestion to all the students who are into college? जो डीयू में है ना, वो मतलब कर लो मजे, BSc में चलता है. लाइफ बार बार ये मौके नहीं देती है कॉलेज जाने के. तो BSc में आई मेड नाइस फ्रेंड्स. BSc में मुझे ये चीज समझ आई कि नॉट everyone is meant for you, कि जिससे भी आप बात करो जरूरी नहीं एट द एंड वो आपका दोस्त रहेगा. तो I had 7 friends, I ended up with 2, now I'm with 1, so 5 7 2, like 7 2 1, it's like decrease हुआ है नंबर मेरा. तो Correct. हाँ, कि हर कोई आपका दोस्त नहीं हो सकता, ठीक है. एंड मुझे एक लर्निंग और थी कि BSc में थोड़ा और मजे करने चाहिए थे, मैंने कम करे अब कम करे ड्यू के हिसाब से. देन MSc में my learning in hostel was कि
how to survive alone. Okay, even after having roommates, how to survive alone, because not everyone is capable to understand you. आप बहुत सारी चीजों के थ्रू go through कर रहे होते हो, but also at the same time to be there for someone. We've had really tough times in hostels, रोने धोने, दूसरे को संभालना and what not. But yeah, to be there, मतलब एक बंदा तो कमरे में होता ही था आपके पास, तो to be there for someone, वहां से मैंने सीखी ये चीज की how does it feel to be alone, मतलब आपके पास कोई हो तो कैसा लगता है. Yeah, so that was my learning from MSc. From my coaching, नहीं coaching में तुम पूछ रहे थे उसमें corporate में. कॉर्पोरेट में मेरी लर्निंग है कि अगर आपका वर्क एनवायरनमेंट अच्छा है, if your manager is a good lead, if your manager gives you a lot of space and freedom to do your work, you can flourish. And on Touchwood, I have a great company right now. I'm blessed with right set of people around me. सब बहुत अच्छे लोग हैं. I also feel it has a lot of role to my thinking, and my thoughts have a lot of role to play in this. If I come to a point where I find faults in everything and anything, I will end up in a toxic environment for myself. पर अगर मैं हर चीज में एक सिल्वर लाइनिंग, एक गुड चीज ढूंढूंगी, then I will create a better workplace for myself. Ups and downs हर जगह होते हैं. Then how much are you able to survive even after that is the thing. कुछ चीजें आपको नहीं अच्छी भी लगती, but then how are you doing it? वो चीजें मैटर कर जाती by the end of the day. So my learning from the office or my corporate is that आपका टीम लीड अच्छा है, आपके वर्क को फेलो जो हैं, को वर्कर्स जो हैं वो अच्छे हैं, तो आपका काम और अच्छा हो जाता है ऑटोमेटिकली. बट इफ दीज टू थिंग्स आर नॉट इन प्लेस, आपका जो अच्छा काम है वो भी खराब हो जाता है. Right environment, basically. Right environment, yes. In right environment, you can flourish. Yeah. Or in worst environment, you can like degrade yourself. Got it. So Mitali, next question is, I think you right now you found your purpose, you found your passion, and you found that thing which you right now you want to pursue for the rest of your life, right? I am starting my college right now. I am into my college, or maybe I'm just still figuring out the things कि करना क्या है लाइफ में. मेरे को जॉब करनी है, मेरे को बिजनेस करना है, यार मुझे ये काम नहीं करना, या मुझे ये जो मैं कोर्स कर रहा हूँ ये नहीं करना. आई एम जस्ट इन दैट सिचुएशन जहाँ पे मेरे को क्लैरिटी नहीं है. व्हाट शुड आई डू इन दिस सिचुएशन? शुड आई just do the things for the sake of doing it? Should I quit the things? Or exactly how should I gain that clarity कि मुझे करियर में क्या करना चाहिए अभी? This would be my question. For this I will say कि ये जानने के लिए कि पहले तो चीज क्या नहीं करना है, उसके लिए कुछ एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तभी डिसाइड कर पाएंगे क्या नहीं करना है. For example, if you are doing a job, या if you are suppose, जैसे तुमने बोला कि अभी तुम स्टूडेंट हो, तुमने अगर कोई इंटर्नशिप किया, सपोज कहीं इंटर्नशिप की, तो क्या इंटर्नशिप करके मजा आया? या तुमने कॉलेज में हो, कोई ऐसा सोसाइटी ज्वाइन की जहाँ तुम्हें मजा आया, या कुछ ऐसा था जहाँ तुमने ज्वाइन किया पर तुमने कहा यार ये अच्छा था पर आई कैंट डू दिस एनी मोर, ये मैं नहीं कर सकता. अगर आपने कुछ डिफरेंट चीजें ट्राई ही नहीं की, एक्सपीरियंस तभी आएगा जब आप ट्राई करोगे. अगर ट्राई करके एक्सपीरियंस नहीं की तो आप नहीं डिसाइड कर सकते कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है. हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हम एक ही जगह बैठ के हम सोचते रहते हैं, हम सिर्फ सोचते हैं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, बट हम उसको ट्राई करने की कोशिश नहीं करते. अब अगर मैं बाहर निकल के उठ के बेड से उठ के कुछ ट्राई नहीं करूंगी, किसी कोर्स में इनरोल नहीं करूंगी, या अगर मुझे लग रहा है कि हाँ ये इंटरेस्टिंग है, आई कैन सी दिस, तो मैं कैसे करूंगी? एंड लेट मी टेल यू, आई हैव ट्राइड enrolling in a graphic designing course as well. Okay, I did that,
just to see कि क्या ये मेरे बस की है, I can I do this, या ये मुझे अच्छा लग सकता है, but eventually I didn't like it. करेक्ट. तो मैंने ये चीजें मल्टीपल, मैंने यूट्यूब ट्राई किया, वो भी तब किया जब मैं पढ़ रही थी. मेरा उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लग रहा था, सिर्फ मेरा फोन था और जो मेरे पास सामान था, मैं धीरे धीरे उस पर बिल्डअप करती गई. तो आपके पास जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको यूज करके आप क्या कर सकते हो अपने लिए जिसमें आपको मजा आए, आपको अच्छा लगे. आपको तभी तो पता लगेगा आपको करना क्या है क्या नहीं करना. अगर आपने कुछ ट्राई नहीं किया, आपने वही पढ़ाई ही की है, या आपने कुछ अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके कुछ किया ही नहीं, तो यू कैन नेवर फिगर आउट. करेक्ट. तो मैंने ये मल्टीपल चीजें की हैं, तो मुझे समझ आया कि मुझे नहीं करना. मैंने एमएससी में जब दूसरों को पीएचडी करते देखा, उनको देखा कि वो 5 साल अपने 6 साल कैसे लगा देते हैं फॉर समथिंग दैट दे डोंट इवन लाइक. तो जब मुझे एमएससी नहीं करनी थी तो आई वॉज 110% श्योर मुझे पीएचडी नहीं करनी. तो वहां से मुझे एक्सपीरियंस मिला. तो मुझे एमएससी करनी पड़ी उस एक्सपीरियंस के लिए, ये जानने के लिए कि मुझे पीएचडी नहीं करनी. मुझे टीचिंग करनी पड़ी, मुझे वो 9 to 5 एक बार करना पड़ा टू रियलाइज दैट ये वाला प्रोफेशन मेरे लिए नहीं है. शायद आई हैव चेंज्ड मल्टीपल लाइन्स. लोग शायद मेरे पीठ पीछे हंसते भी होंगे दैट दिस वुमन इन हर करियर ऑफ 4 to 5 years हैज चेंज्ड मल्टीपल प्रोफेशंस. आई डोंट गिव अ डैम. ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज एटलीस्ट जहां में भी मैं जो भी कर रही हूँ, चाहे मैं 4 पैसे कम कमा रही हूँ, एटलीस्ट आई एम स्माइलिंग, आई एम हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे, आई एम स्लीपिंग पीसफुली. मुझे एंग्जाइटी नहीं होगी कि मैं सुबह उठ के मुझे जो करना है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. ये चीज नहीं होगी. Correct, correct. So one thing, few things that I can just get out of this answer of is कि अगर आप चाहे कॉलेज में हैं, चाहे कॉलेज स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे जो भी कर रहे हैं, आप ट्राई आउट मल्टीपल थिंग्स. ठीक है, अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका दीजिए कभी भी. एक्चुअली ये जो हमारा 20 से 30 ईयर्स की एज होती है, वी हैव द मैक्सिमम एनर्जी. दिस इज व्हाट आई लव अबाउट रणवीर अलाहाबादिया, कि वो जो बोल रही है ना कि हमारे पास 20 to 30 की एज में सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा टाइम होता है. एक्चुअली होता है. दिस इज योर गोल्डन पीरियड, गोल्डन आवर्स हैं आपके पास. यूज दिस. अब मतलब प्लीज डोंट वेस्ट watching Netflix. Please don't waste your time watching Amazon. ये सब बाद में you will have a lot of time to do this. But अगर कुछ जिंदगी में you want to do meaningful, अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए, तो आपको वो टाइम कुछ घंटे अपने आपको ढूंढने में लगाने पड़ेंगे. Even if I was in a 9 to 5 for Monday to Friday, Rohit, and that too odd shifts, either early morning, either night shifts. I was having Saturday, Sundays for coaching sessions, learning and training myself, and then getting trained eventually. Correct. वो चीज है. तो nothing comes for free. Everything you have to pay a cost for everything, and I paid the cost of my time. See, right now I think जो हम पहले बात करते हैं सोशल मीडिया के इस एरा में, राइट नाउ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इतना हो चुका है कि हमको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ चाहिए कि इस पे चलो और भाई लाइफ सेट है. वो लाइफ सेट हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, 5th कर लो लाइफ सेट है, 10th कर लो लाइफ सेट है, 12th कर लो लाइफ सेट है, कॉलेज कर लो लाइफ सेट है, फिर जॉब कर लो लाइफ सेट है, फिर शादी कर लो फिर लाइफ सेट है, फिर बच्चे कर लो फिर लाइफ सेट. वो लाइफ सेट ही नहीं होती. कभी नहीं होती. आई थिंक वो स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ कभी नहीं होने वाला, ना आज के टाइम में, ना आने वाले टाइम में. You just have to keep exploring yourself. You have to give yourself the time कि चलो यार मैं कॉलेज में हूँ. आई थिंक कॉलेज इज द बेस्ट टाइम जहाँ पे आप एक इंडिविजुअल एक्सप्लोर कर सकता है. उसके पास कॉलेज आवर्स है, उसके बाद he doesn't have to go to any job or something. तो उसके पास टाइम ही टाइम है टू एक्सप्लोर. आज के टाइम में इंफॉर्मेशन, जैसे हम बात कर रहे थे, वेब 3.2 आने वाला है. बेसिकली इंफॉर्मेशन है, ऑनलाइन कोर्सेज हैं. इनरोल योरसेल्फ, सी यार ये चीज मेरे को, इसमें मजा आ रहा है, मेरे को टिक मिल रही है, कहते हैं. इवेंचुअली व्हाट विल हैपन इज, अकॉर्डिंग टू मी, इज जिस चीज में आपको मजा आएगा ना, दैट ऑटोमेटिकली इट विल अट्रैक्ट ऑल द अपॉर्चुनिटी दैट आर पॉसिबल. और जो चीज नहीं होगा, डोंट स्टिक टू इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. यार मेरे को मजा ही नहीं आया फिर भी कर रहा हूँ. एक्सप्लोर योरसेल्फ, एक चीज पे स्टक होके मत रहिए. एंड ऑब्वियसली फॉर ऑल द पीपल हु आर जस्ट थिंकिंग कि एकेडमिक से बहुत कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला एकेडमिक से. Mitali, just to share this with you, I had this friend of mine who was really very good at academics, but he didn't focus on the other skills during my college.
And we used to say, like, we had a group of 14 old people, a big group in our college. So we used to, all of them used to say कि यार तू explore कर इन चीजों को. And you नहीं यार मेरे को, because वो mindset ऐसे बने होते हैं ना कि यार हमको academics ही करना है. academics करना है. So वो I think वो पैटर्न आपके माइंड में, तो you need to break that pattern. Because at the end of the day, अगर आप कॉर्पोरेट में भी जा रहे हो, जॉब भी कर रहे हो, आप बिजनेस करोगे, apart from academics, जो आपकी skills होंगी, that would contribute majorly. Definitely. I would still tell you one incident कि when I was giving the interview for the current company that I was doing, मेरी chemistry ठीक ठाक थी. I wouldn't say it was the best, but हाँ, I made mistakes. But today when I asked my team lead कि क्या सोच के मुझे hire किया था, he says कि I liked your confidence more than your subject knowledge. Correct. So I would say this to everyone that currently the recruiters that hire people hire you for your confidence, hire you for your attitude, hire you for your skill set that you can show them, that you can offer them. And subject knowledge, academics, एक time के बाद they really don't play a major role. They don't. Correct. And see, interviewers भी ना अभी काफी स्मार्ट हो चुके हैं. स्मार्ट पहले भी थे ऑब्वियसली, बट अभी ज्यादा स्मार्ट हो चुके हैं. Right now, they follow a particular technique called STAR technique. I'm sure you might have heard of it. Situation, task, action, response और reaction. Basically वो आपको situation देते हैं, ठीक है, उसमें आप क्या करोगे, प्रॉब्लम है, उसमें आप क्या करोगे, रिजल्ट कैसे लेके आओगे. तो आपको सिचुएशन है, आपने कोई टास्क किया, उसमें क्या एक्शन लिया आपने, क्या एक्शन लोगे, उसके बाद क्या रिजल्ट आएगा. तो अगर आप वो पूरा फॉलो करते हो, और मोस्टली लोगों को पता भी नहीं है स्टार टेक्निक का, तो ये चीज अगर फॉलो करते हैं, देन इट डिटरमाइंस कि भाई हाँ चलो इस बंदे को पता है कि क्या क्या चेक पॉइंट्स है, कहाँ पे क्या चीज करनी है. सो वो आपके जो बिहेवियर, आप चाहे कितना भी झूठ बोल रहे हो इंटरव्यू के अंदर, बट जो सामने बैठा बंदा, ही इज मोर स्मार्टर देन यू आर. ही नोज कि कहाँ पे ये बात तो घुमा रहा है, कहाँ पे ये सच सच बोल रहा है. सो वो चीज जितना आप ऑथेंटिक रहोगे, जैसा आपने अपने मिशन में कहा, ऑथेंटिक सेल्फ जितना हम रहते हैं अपना, दैट रेजोनेट्स मोर विद द अदर पर्सन, चाहे वो किसी भी लेवल पे है, चाहे वो रिलेशनशिप में है, चाहे वो इंटरव्यू के लिए है, चाहे वो करियर में है, और चाहे वो नेटवर्किंग में है, ऑल टुगेदर. और एट द एंड ऑफ एनी इंटरव्यू आपको हमेशा पता होगा यू डिड गुड और यू डिड बैड. तो आपको पता होगा दैट यू कैन एक्सपेक्ट अ कॉल और नॉट. सो आई डिड नो कि I did good because I could see the smile at the face of the interviewer. So, and never leave an interview without asking appropriate questions. You have to ask questions, otherwise chances कम हो जाते हैं. It feels कि आपको किसी भी रोल में बिठा दिया जाए तो आप काम कर लोगे. मतलब आपको कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको सिर्फ आना है, अपना 9 to 5 करना है. You will have to ask questions about the company. It's easier. और वो चीज पूछी जाती है ना इंटरव्यू के अंदर, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी. सो आई थिंक दैट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू इंटरेक्ट विद द पर्सन. एक्चुअली लोग मोस्टली इस क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं कि नहीं मेरे पास कोई क्वेश्चन ही नहीं है. I used to do that. I did that with the interview that I gave for MBIN. तो मैंने उसमें नहीं पूछा था. But then I learned slowly. I saw multiple interviews and then लगा कि हाँ मुझे क्वेश्चन पूछना चाहिए. Correct. So to sum up this question of finding your passion, finding your purpose, don't run behind this line कि do what you love. जब तक आपने कुछ एक्सप्लोर ही नहीं किया है, right. You really don't know कि आपको क्या पसंद है. लोग कहते हैं अपना पैशन ग्रो करो, बट पहले पैशन फाइंड तो करो. हाँ. ग्रो तो तब करोगे जब फाइंड करोगे. और पैशन ना पैसा नहीं देता हर बार, ये बात याद रखना. पैशन हर बार पैसा नहीं देगा. बहुत रेयर होता है कि पैशन आपको पैसा दे रहा है. यू विल हैव टू फाइंड समथिंग, क्योंकि एक टाइम के बाद पैशन को करते करते आप शायद बर्नआउट भी फील करने लगो. ठीक है, अब आप उसको हेट होने लगेगा आपको उस काम से, फिर वो ड्रेड करने लगोगे, तो कोई फायदा नहीं है. कीप योर पैशन एंड योर वर्क सेपरेट सो दैट यू एंजॉय द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. Correct, got it. So explore yourself as much as possible. Eventually you'll find something that will feed you for the rest of your life. That's what I can say. True? And you know, yeah. I would add to it कि
why my friend told me कि you are at the right place was that because as a coach you are helping people. Correct. And I used to do that since school. मतलब somehow किसी को गिर गया, कोई गिर गया तो I would run and help that person. किसी को कुछ भी चाहिए क्लास में तो I would go and offer that person. I was always available for that person कि अगर किसी को कुछ भी चाहिए तो yeah I will offer help. किसी को कहीं भी कैसे भी जाना है तो I will try my best कि उसको वो चीज मिल जाए. तो I think ये चीज मैंने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया कि शायद ये मेरी यूएसपी है. This is what I can offer to people. And when I landed into coaching and when my friend actually saw that कि yeah you are at the right place, and yeah I think so, yeah I'm right, I'm at the right place. Right. Got it. Okay, so coming to the next question that we have is, how should I take the right decision? Because sometimes, not sometimes, I'll say majority of the times हमें हमारे decision से हमें किसी situation में या किसी zone में पहुंचाते हैं. You are today here because of your decisions. Correct. So how should I know कि जो मैं सोच रहा हूँ या जो मैं decision ले रहा हूँ, is it right or is it wrong? Like how should I figure out कि ये मेरे लिए सही है? How should we take that decision? To take a decision which is good for you, उसमें सबसे पहला एक बेसिक स्टेप होता है खुद को जानने का. और खुद को जानने का मतलब आप किस चीज को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हो अपनी लाइफ में. आप वो डिसीजन किस चीज के मद्देनजर रखते हुए लेते हो. आप अपने ऑनेस्टी को लेके रखते हो या आप अपने ट्रस्ट को लेके रखते हो, आप लव को लेके कोई डिसीजन लेते हो या आप वेल्थ को लेके कोई डिसीजन लेते हो. कौन सी ऐसी 4-5 चीजें हैं जिनको आप मद्देनजर रख के डिसीजन लेते हो, क्योंकि एट द एंड अगर वो सारी चीजें फुलफिल हो रही हैं तो आपका डिसीजन सही होगा. और अगर आपकी वो चीजें फुलफिल नहीं हो रही हैं तो वो डिसीजन सही नहीं होगा. अब सपोज आपको कोई जॉब लेनी है but that job is in another location, ठीक है, but they are offering a good pay. But there is another job which is in a close by location which is offering a lesser pay. Correct. पास की लोकेशन कम पे, दूर की लोकेशन अच्छा पे. This is your two choices that you have. Now, if for you family is important, if for you love is important, if for you being close to your family is important, you will definitely go for the first one, which has lesser salary but it's a close location. Correct. But if for you wealth, if for you success, if for you growth is important, you will choose the second option. Right? But to choose you need to have a substance so that you can put a filter कि हाँ मैं किसके थ्रू अपना डिसीजन पास करूं, किस बेसिस पे डिसीजन लूं. तो आपके डिसीजन इवेंचुअली कुछ वैल्यूज पे ही बेस्ड होंगे हमेशा से. Mostly some of my decisions are based on families, based on love. तभी मेरे पास ये example था because I had a similar choice for myself. Okay. So yeah, that is why. Got it. So I think the also I read in Ankur's book that कि अगर आपको कोई eventually कोई decision लेना है which is very risky. This is for very risky decision कि it's like आर या पार वाला हिसाब है. तब अगर आप उस डिसीजन को, अगर आप उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, अगर आप इमोशनली, मेंटली, सोशली, फाइनेंशियली सर्वाइव कर सकते हो, अगर आपको मतलब अगर आप वो झेल लोगे वो सारे कॉन्सिक्वेंसेस, then I think you should take that decision at the end. Because जब आप इमोशनली, फाइनेंशियली, सोशली सब सोच लोगे तो आप अपनी फैमिली, पैसा, सब चीजें कंसिडर कर लोगे. So that at that time you can take a very risky decision as well. Correct. And वो 20 से 30 का ही फेज होता है कि जब हमारे पास चीजें बहुत कम होती हैं स्टेक पे. We are unmarried, we don't have a family to feed right now. और हमारे बैक में हमारे पेरेंट्स होते हैं कि अगर हम गिरे तो वो बचा लेंगे. ठीक है. So we have a lot of potential to take risk in 20s to 30s. और हम ये सोचते रह जाते हैं कि अभी सेट हो जाते हैं बाद में रिस्क ले लेंगे, अभी सेट हो जाते हैं बाद में रिस्क ले लेंगे. वो बाद कभी नहीं आएगा बिकॉज देन इवेंचुअली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं. और ये मैं उन फैमिलीज के लिए बोल रही हूँ जिनसे हम आते हैं, तुम और मैं मिडिल क्लास फैमिलीज से, कि हमारे लिए रिस्क एपेटाइट वैसे ही कम है बिकॉज ऑफ द माइंडसेट दैट आवर फैमिली हैज. अगर हम वो डिसीजन अपने लिए नहीं लेंगे तो कोई भी नहीं लेगा हमारे बेसिस पे आके. करेक्ट. एंड आई थिंक
I'm really excited to say कि your one decision also made you an author. So Yeah. could you share an insight on that decision? How it eventually happened, or Uh, or was it planned? it wasn't planned, but yeah, it was one of my outcomes कि हाँ that I'll write a book on my own. But yeah, अभी तक मैंने अपनी तो नहीं लिखी है, but yeah, I did write one chapter with 7 other authors. It was very random. हम लोग कुछ फरीदाबाद के coaches, we were meeting online, and we thought कि who thought कि ऐसे pandemic के दौरान we all would be coaches and हम ऐसे online मिल रहे होंगे, and met some wonderful people, मतलब wonderful energy, wonderful people, क्या profession, क्या उनका background, क्या stories, powerful stories. And I was like so grateful कि निवेदिता से जब मैं मिली, तो एक टाइम था जब मैंने निवेदिता से कॉल करके पूछा था, निवेदिता कैन आई डू दिस आर्फिन का कोर्स, यू हैव डन दिस, what do you think, is it worth it? She was like, yeah, this is what you can do. And now I was talking to her, she's my friend right now, and she was the one who actually brought up the idea of writing a book. वो तो बाद में step out हो गई थी because she had some other priorities. But yeah, she was also one of the pre-authors that was supposed to write the book. So life comes down to you a full circle when you think about yourself. तो जब मैंने कोचिंग के लिए खुद के बारे में सोचा, इवेंचुअली मुझे ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया, जिनकी वजह से मैंने बुक लिखी, बुक में एक चैप्टर लिखा. दैट वाज बिकॉज ऑफ द पीपल दैट आई मेट, Correct. बिकॉज ऑफ वन डिसीजन दैट आई टुक कि मैं कोचिंग स्टार्ट करती हूँ अपने लिए. एंड या I think it all comes down to as you said, na, your intentions are giving all the things. So या so जब आपकी intention सही थी ना कोचिंग टाइम पे, so all the opportunities start coming in your way, या right? Okay, so Mitali, last question to you so that we can just sum this interview. That will be specifically for the right mindset. What are the tools that you recommend so that a person who's listening to this right now, if he or she is having or not having a right mindset, so वो कैसे build up कर सकते हैं? Because ठीक है podcast हो गया, but what should be the exact strategy for me to build the right mindset? मैं कैसे वो सब चीजें सीख सकता हूँ जो कि एक ग्रोथ माइंडसेट वाले बंदे में होती है? So any books you recommend, any course you recommend, or what are the tools that you recommend? For tools, I think I would recommend कि there's a personality test that everyone should do, that everyone should do to know more about themselves. कि what do you do in a very good state, what do you do in a destructive state, आप कैसे behave करते हो, एक अच्छी state में आपके emotions कैसे होते हैं, एक बुरी state में कैसे होते हैं, एक average state में कैसे होते हैं. तो it's very important to एक आपका summarized version आपको report में मिले, ताकि आप अपने इमोशंस को डिफाइन कर पाओ. हमें पता है ये इमोशंस एग्जिस्ट करते हैं, बट आर वी एबल टू डिफाइन इट इन वर्ड्स? मतलब ये एक्चुअली है क्या? डू यू फील फियरफुल, डू यू फील सुसाइडल, डू यू फील इमोशनल, डू यू फील डिप्रेस्ड? ये क्या इमोशंस आप फील करते हैं जब आप एक अच्छी स्टेट में होते हैं या एक बुरी स्टेट में होते हैं? तो इट्स इंपॉर्टेंट कि हम उन्हें डिफाइन कर पाए. So first tool that I would recommend is everyone should do a personality test. I think so. पर्सनालिटी टेस्ट एक करना चाहिए. इट इज फ्री अवेलेबल ऑनलाइन, बहुत आराम से मिल जाता है. They can type and search for it. It's also called Enneagram test, if you would know, right? Okay. So yeah, one should do that. And for courses, I would say depends on कि आपको करियर के लिए करना है या लाइफ के लिए करना है. एंड उससे पहले सबसे पहले अपना सोशल मीडिया साफ करें, छटाई करें उसकी. इंस्टाग्राम पे आप किनको फॉलो करते हैं, फेसबुक पे आप किनको देखते हैं, आपके सब आसपास सिर्फ वही लोग होने चाहिए जिनसे आप खुद को कंपेयर ना करके, बट यू लुक अप टू देम एंड थिंक कि दिस मैन हैज समथिंग स्पेशल टू ऑफर, इज एडिंग वैल्यू टू माय लाइफ. आपको उन लोगों को फॉलो करना चाहिए rather than following those people whom you end up yourself comparing with. So please eliminate people with whom you compare yourself and add people who can add value to your life, and you can also add value to their life in some or the other way. So it's always a give and take relationship. Right. And what was the third thing that you asked about? The growth mindset. First one you said, na, personality test. Second, social media. What would the next thing? Books you recommend?
any sort of thing? बुक्स आई थिंक हमारे पास आसपास तो खैर बहुत ही सारे रिकमेंडेशंस अवेलेबल होते ही हैं, बट आई वुड से कि अगर मैं कोई बुक उठाती हूँ, मेरी क्या स्ट्रेटेजी होती है, अगर मैं कोई बुक उठाती हूँ एंड इफ आई एम एबल टू स्टिक विद इट एटलीस्ट फॉर लाइक 10-15 पेजेस, देन आई लाइक द बुक एंड मुझे लगता है कि हाँ, दिस इज एडिंग वैल्यू. Sometimes you pick a book and आपको लगता है नहीं, मजा नहीं आ रहा, then you stop reading it. That's absolutely fine. आपको जरूरी नहीं है कोई भी आपने किताब उठाई तो उसको खत्म करके ही छोड़ना है. आप कोई भी किताब उठाएं, देखें क्या आपकी वो समझ में आ रही है. अगर समझ में आ रही है तो आप उनसे क्या लर्निंग्स ड्रॉ कर पा रहे हैं. मे बी यू कैन राइट अ नोट और आपको लगे कि what was the learnings that I had. I did with that with think yourself like a monk. मैंने वहां से ये चीज स्टार्ट करी. बिकॉज अगर किसी ने कोचिंग नहीं करनी है, सपोज इफ समवन डजंट वांट टू बिकम अ क्लाइंट और किसी को प्रोफेशनल कोचिंग नहीं लेनी है, तो आई वुड से कि थिंक लाइक अ मंक इज अ बुक व्हिच इज कोचिंग इन अ बुक. सो आप थिंक लाइक अ मंक पढ़ सकते हैं एंड दैट इज एक्चुअली अ गुड बुक व्हिच विल ऑफर यू मोर नॉलेज अबाउट योर ओन सेल्फ. Okay, got it. So thank you so much, Mitali, for sharing all your insights. Now, if someone wants to connect with you, how they can reach out to you, and they can connect with you? I think you can easily reach out to me on my email first. That is mindmentormitali@gmail.com. You can find me at Instagram at mindsetcoach.mitali and obviously Facebook pe bhi I'm available at a personal level, not yet created a page and all. But yeah, when you reach out to me via Instagram or email, I will get back to you definitely. So people, if you want to reach out to Mitali and take some help from her so that you can just fast track your journey towards having a full potential life in your career, in your relationships, or holistically, I'll say. So आप मिताली को reach out कर सकते हैं, and मैं description box में मिताली के सारे social media links and all the ways you can reach out to मिताली वो सब डाल दूंगा. So you can just check the description and you can follow मिताली over there. So thank you so much, Mitali. It was a pleasure having you on this podcast episode. So thank you so much. Same here. Thank you, Rohit. Thank you so much.